My association with Mar Joseph Pastor Neelankavil is, so to say, quite brief. After becoming the Bishop of Sagar, whenever I visited Kerala, I made it a point to visit a Bishop Pastor Neelankavil at Sagar Mission Home, Kuttur. His endearing smile revealed the serenity he enjoyed in his retirement. Whenever I asked him if he needed anything, he had no demands. He was quite satisfied, a man of contentment. Till the onslaught of the pandemic COVID-19, he was quite active, officiating various religious events in and around Trichy and of service to the people. He was the second Bishop of Sagar. His 19 years as active bishop were eventful. The diocese witnessed tremendous progress under his able leadership. He started many institutions, and many religious congregations founded their convent here during his time. MVSS, the social service wing of the diocese, many service centers of mercy at Shambura were started during his time. The Pious Union of the Sisters of Jesus was raised to the level of a diocesan religious congregation under his leadership. Joseph Pastor Neelankavil was a courageous bishop with great vision for the church. He was undaunted as difficulties and problems surrounded him. His deep faith and trust helped him to surmount all these storms. I still remember vividly the 3 days I spent with him last month. We have had brief conversations together, meals together, and offered Holy Mass together. The diocese owes much to Pastor Neelankavil. I take this occasion to express the sincere gratitude of the diocese to our second bishop, Mar Joseph Pastor Neelankavil, while I pay my respect and homage to him and pray for his eternal reward in heaven. Thank you. The sad and sudden demise of Bishop Joseph Pastor Neelankavil CMI, second Bishop of Sagar, and my predecessor, has certainly created a great vacuum in my life. To me, he was more than my bishop and predecessor. He considered me always his younger brother. We came from the same parish and we were neighbors. During my seminary days and later as a priest in Sagar Diocese and during my life in Rome, we never lost touch of each other. I was happy when I heard that he was elected to succeed Bishop Clemens Tottingal CMI, first Bishop of Sagar. With the episcopal motto, "For Peter and for people," he began his mission in Sagar Diocese with great enthusiasm. He was a visionary. He started new missions, schools, hostels, healthcare, social work, and so on. It was a difficult time for him and for the diocese due to lack of missionary personnel, want of funds, and due to misunderstandings of different nature.
yet he was a courageous man and well disciplined. He was a man of prayer and deep faith. What I did as his successor was only to build up and continue with what he had begun. That reduced my burden. The Diocese of Sagar and me personally will miss him. Thank you, Bishop Ji, for everything. May the merciful Lord grant you eternal reward. स्वर्गीय बिशप मार जोसेफ नीलंगाविल 19 साल सागर के धर्माध्यक्ष रहे हैं। उसमें 10 साल मैं उनके अपॉइंटमेंट के अनुसार माइनर सेमिनरी के रेक्टर रह चुका हूँ। मेरा उसके संबंध बहुत मजबूत रहे हैं, क्योंकि बिशप स्वामी माइनर सेमिनरी के हर बातों में हमको करेक्शन देने में, मदद देने में और सजेशन देने में अक्सर आया करते थे। उन्होंने एक मजबूत कदम ये सेमिनरी शुरू करने में लिए हैं और इसी के फलस्वरूप आज सागर धर्म प्रांत 60 से अधिक पुरोहितों से हम संपन्न हो गए हैं। तो मैं बिशप स्वामी को अभी याद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि बिशप स्वामी स्वर्ग में विराजमान है। बिशप जोसेफ पास्टर नीलंगाविल के निधन पर सागर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष मार जेम्स अतिकलम, मार आंटनी चरेत, सभी फादरगण, धर्म संघी और धर्म प्रांत के सभी विश्वासियों को सेंट पॉल सीएमआई प्रोविंस भोपाल की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। बिशप पास्टर एक मिशनरी थे, जिसकी बल से इन्होंने सीएमआई सेंट पॉल मिशन एवं सागर धर्म प्रांत की उन्नति के लिए कड़ी मेहनत और लगन से कार्य किए हैं। सीएमआई धर्म संघ के सदस्य के रूप में और जिम्मेदार पदों पर रहकर बिशप पास्टर ने मिशन की उन्नति के लिए नए कार्यों का शुरुआत किया। उन्होंने 1971 में सागर मिशन के लिए मिशनरी प्रशिक्षण हेतु पहली बार केरल के बाहर रांची में एस्पिरेंट्स हाउस का शुरुआत किया, जो सीएमआई धर्म संघ में पहले कदम था। इन्होंने यह विश्वास किया था कि मिशन के लिए प्रशिक्षण मिशन परिस्थितियों में ही होना अनिवार्य है। सागर भवन त्रिशूर में जो सीएमआई सेंट पॉल प्रोविंस की मिशन हाउस है, बिशप पास्टर अक्सर आया करते थे और उनकी आगमन हमारे बुजुर्ग फादर लोगों में आनंद और खुशियां लाते थे। वे एक साथ बैठकर अपनी पुरानी मिशनरी कार्यों की याद करते थे। सागर मिशन और मिशनरियों की और उनका प्रेम बहुत गहरा था। हम बिशप पास्टर से ये सीखे कि हम कैसे निष्ठा और लगन के साथ प्रभु के कार्यों में कार्यरत रहे। प्रेममय ईश्वर बिशप पास्टर को आत्मा को आनंद शांति प्रदान करे। सागर धर्म प्रांत के पूर्व धर्माध्यक्ष स्वर्गीय बिशप जोसेफ पास्टर नीलंगाविल के साथ मेरा बहुत ही निकट संबंध रहा। उनके साथ का अनुभव अगर मैं बोलूं तो मेरे नज़र में बिशप स्वामी एक संतमय जीवन बिताते थे। प्रार्थनामय जीवन, क्षमा, शत्रुओं के प्रति प्रेम, गरीबों और बेसहारा बच्चों के प्रति प्रेम व सेवा भाव आदि गुणों से ओतप्रोत थे। शाम्बुरा अनाथाश्रम में हफ्ता में कम से कम एक बार आकर बेसहारे बच्चों, दिव्यांग बच्चों के साथ मिलते थे, समय बिताते थे। बिशप स्वामी सागर धर्म प्रांतीय पुरोहितों को विशेष ध्यान देते थे और विशेष रूप से प्रादेशिक बुलाहट को ध्यान दिया, जिसके वजह से सागर धर्म प्रांत में धर्म प्रांतीय पुरोहितों की बढ़ोतरी हुई और सागर धर्म प्रांत में के
प्रगति के लिए बहुत ही कार्य करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थाओं को शुरू करने के लिए उनको बहुत रुचि रखते थे और ग्रामीण क्षेत्रों में वह स्वयं जाकर रहते थे और सारी कठिनाइयों को सामना करने के लिए तैयार थे। भले उनके जीवन में चुनौतीपूर्ण समय रहा, फिर भी अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। धर्म प्रांत के प्रगति के लिए उसने जो कुछ कार्य किया बहुत ही सराहनीय है। इस वक्त मैं अपने स्वर्गीय बिशप स्वामी जी के प्रति अश्रुपूरित श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। I am here with a heavy heart to express my condolences to the entire Saga diocesan family. Bishop Joseph Pastor was really a motivator to me. I had the privilege to work with him as his secretary. He taught me how to face the challenges and gave me chances to face the challenges. His punctuality and clarity in doing things helped me to grow higher in my priestly ministry. Bishop had a strong commitment to develop the base of the Catholic Church of Saga, and he did it. Now, the younger generations are enjoying these fruits of it. I'm sure that he is enjoying his heavenly life with the Heavenly Father and beseeching for all of us to work for the glory of God. Gratefully, I acknowledge all his great contributions being rendered for the Church, especially for our Diocese of Saga. May he enjoy the eternal bliss in heaven. We are saddened by the sudden demise of our Bishop Emeritus Joseph Pastor Neelankavil CFI. He was a strong man with strength, courage and conviction. He was committed for the development of the Diocese of Saga. He also encouraged us to be true missionaries. In our early priestly ministry, we remember that he used to appoint us in 3 to 4 places simultaneously, with minimum facilities and conveyances. And he used to encourage us to work in that situation. Therefore, we have true experience of genuine missionary spirit, missionary life in us today. He encouraged us to be committed missionaries. He was a far-sighted visionary. Therefore, he started many schools and hostels and also healthcare centers in our diocese. We saw him as a man of discipline and punctuality in work and prayer. The Diocese of Saga will always remember his great contribution in the development of the Diocese of Saga. His departure from this world is a great loss for us, for the Diocese of Saga, and also for the Church. During his retirement, many of our fathers could serve him. And in his last days, Father Anson was there at his side, serving him. And today we pray that God Almighty grant eternal rest to our Bishop Emeritus Joseph Pastor Neelankavil. स्वर्गीय सम्मान के लिए हमारे बीच से विदा हो गया बिशप पास्टर जोसेफ नीलंगाविल अपने जीवन काल में अपनी भेड़ों को प्यार करते थे। भेड़ों को संग में रहना, मिलना, समस्याओं को सुनना, समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत परिश्रम करते थे। इस तरह मसीह का प्रेम और मित्रता प्रकट करते थे। हमारे बिशप स्वामी हमेशा अपने भक्तों को विशेष रूप में संत यूसुफ का भक्ति प्रकट करते थे। इस भक्ति भाव का प्रसार के लिए एक सैन्य समूह का शुभारंभ किया है। उसका नाम है DSJ, डॉक्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ।
इस समूह द्वारा संदेश के भक्ति आगे बढ़ाते रहते हैं और मसीह के शत्रु प्रेम अपने जीवन द्वारा प्रेरित करते थे। जीवन काल में हमारे स्वर्गीय बिशप स्वामी जी समस्याओं को सुनना, उसको संघर्षों को सामना करते हुए भाइयों को प्रेम करने का, ये समस्या का प्रेम आगे बढ़ाते रहते थे, उन्हें क्षमा करते थे और आत्मीय जीवन और सुसमाज प्रचार प्रसार के लिए संजय गुरुकुल सेमिनरी, विद्यालयों, सन्यासी भवनों, गिरजाघरों, मिशन सेंटरों को स्थापना करते हुए मिशन का विकास के लिए बहुत कार्य करते थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे बीच से मरे हुए इस स्वर्गीय बिशप स्वामी को नित्य प्रदान कीजिए। Late Bishop Joseph Pastor, a missionary who was committed to the spiritual as well as material development of the diocese. There was a time when he had to manage with just 15 priests, yet he was not hesitant to start new mission stations, education institutions, or send the priests to abroad for higher studies. He was a man of strong character and always stood with the decision he took. Outwardly, he seemed to be very rough in nature, but he had a loving heart which did not permit him to punish anybody. Even during the period of turmoil in the diocese, he could maintain serenity and calmness because he used to spend a lot of time before the Blessed Sacrament. As Bishop Emeritus, he did not want to leave the diocese. He wanted to live and die here in the diocese. I am a diocesan priest who served the diocese for about 10 years under the able administrator Bishop Pastor Neelan Kavil in various capacities, living in the bishop's house. I am shocked to hear his sudden and unexpected demise. I pray that God grant him eternal rest, and I wish the diocesan family hearty condolences. स्वर्गीय बिशप जोसेफ पास्टर नीलंगाविल को सन फ्रांसिस अनाथ आश्रम के प्रति अत्यंत स्नेह एवं ममता थी। वे बच्चों से मिलने के लिए आश्रम में हर हफ्ते भ्रमण करते थे एवं बीमार से पीड़ित बच्चों व उनके उपचार पर विशेष ध्यान देते थे। पढ़ाई में उस बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु हमेशा प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देते थे। अत्यधिक व्यस्त होने पर भी वह बच्चों की शादी में हमेशा उपस्थित होते थे। आज सेवाधाम आश्रम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो सुविधाएं एवं संरक्षण मिल जाता है वह उनका सपना एवं अथाह मेहनत का परिणाम है। वह सचमुच एक प्रेमी गडरिया था। ईश्वर उनके आत्मा को स्वर्गीय आनंद प्रदान करे। बिशप जोसेफ पास्टर नीलंगाविल के सामने हम दुख के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सच्चाई तो कड़वा लगता है, सच्चाई बोलने वालों को भी कड़वा लगता है। इसलिए बिशप जोसेफ पास्टर नीलंगाविल के बारे में हम लोग मनन चिंतन करने पर, वो एक सच्चाई का आदमी था। वो चर्च के लिए जिया हुआ व्यक्ति था, कलीसिया के लिए जिया हुआ व्यक्ति था। उनके जीवन में जो कुछ कमाया, उनके जीवन काल में जो कुछ कमाया, वो डायोसिस के लिए थे। उन्होंने 16 डायोसिसन प्रीस्ट को उनका साथ रहकर ये संघर्ष को अपनाने में, संघर्ष से सामना करने के लिए कोशिश किया था। उस समय डायोसिसन प्रीस्ट के लिए एक नाम था बीजेपी, यानी बिशप जोसेफ पास्टर्स पार्टी। फिर भी हमने हारा नहीं, बिशप के साथ निभाया अपना उत्तरदायित्व। बिशप स्वामी ने जो कुछ अपने डायोसिस के लिए कमाने पर, उसी रास्ते पर बहुत कुछ संघर्षों को सामना करना पड़ा। आज जो कुछ हम देखते हैं, इतना डायोसिस स्कूल्स और डायोसिस में जो बनाए हुए कुछ सुविधाएं, आज जो बिशप हाउस हम देखते हैं, वो आंगन कितना सुंदर है, उन्हीं का ही विषय है। और खजूरिया, बरारू, सेवाधाम, शंपुरा, ऐसा एक एक हम लेते हैं तो उनके सामने हम प्रणाम करना है, नमन करना है। हम ये बिशप स्वामी को उनका देन के लिए
डायोसिशन प्रीस्ट के रूप में प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं। It was with a very heavy heart that we got the very sad news of the death of our beloved Bishop Mar Joseph Pastor Nilangavi, with whom I had the privilege to be a man of discipline and action, who always stood for justice and truth. A saintly bishop who prayed and spent long hours in the presence of Blessed Sacrament, where he found consolation for everything. The bishop lived a very holy life on earth, and remembering that, I am consoled, as God has called him to rest. But he is still near us, and we all have an advocate in heaven. I believe he will do much for Sagar from heaven. बिशप जोसेफ पास्टर नीलंगावी सागर धर्म प्रांत के लिए एक सोच है, एक विचारधारा रूपी एहसास है। उनकी मृत्यु से वो हमारे लिए कभी खत्म नहीं होते। वह एक बेहतरीन प्रशासक थे, उससे भी बढ़कर वह एक सिद्धांतवादी मनुष्य थे, और उनकी कल्पनाओं की अंदाज ना ही कभी हम समझ सके और ना ही हम उसे समेट सके। उनकी मृत्यु सागर धर्म प्रांत के लिए एक आनंद नष्ट है। उनकी इस आकस्मिक मृत्यु के अवसर पर सागर धर्म प्रांत युवा आंदोलन की ओर से हम संवेदना व्यक्त करते हैं और उनकी आत्म शांति के लिए आत्मार्थ हृदय से प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। स्वर्गीय बिशप जोसेफ पास्टर नीलंगाविल आज हमारे दिलों में एक जीवंत सशक्त कर्मयोगी के रूप में उभर कर आ रहे हैं। उस स्वर्गीय धर्मात्मा के लिए मैं शत शत प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने अपने कार्यकाल में एसजे सिस्टर लोगों को निडर होकर आगे बढ़ने, कर्मठता से कार्य करने, कुशलतापूर्वक मिशन कार्य को निभाने का सामर्थ्य प्रदान किया। एसजे समाज के संस्थापक पिता स्वर्गीय बिशप क्लेमेंस के निधन के बाद बिशप स्वामी जी ने धर्म समाज को नए तरीके से संचालित किया एवं धर्म संगिनियों को दृढ़ता और पवित्रता के राहों पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके कार्यकाल में एसजे धर्म समाज को पायस यूनियन से कॉन्ग्रीगेशन के रूप में पदोन्नत किया। धर्म समाज के कार्य प्रणाली और संविधान को चिन्हित किया गया। आज मैं एसजे समाज के नाम पर पूजनीय स्वर्गीय बिशप स्वामी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। कृतज्ञता भरे दिल से बिशप स्वामी द्वारा एसजे समाज के लिए किए गए सभी कार्यों को याद करती हूँ। उनके आकस्मिक निधन से दुखित नीलंगाविल परिवार के सभी सदस्यों, सागर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष पूजनीय जेम्स अतिकलम, पूर्व धर्माध्यक्ष एंटनी चिरयत, सीएमआई धर्म समाज, सभी पुरोहितों एवं सागर की कलीसिया को मैं हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूँ। प्रभु से दुआ करती हूँ बिशप स्वामी के आत्मा को नित्य शांति प्रदान करे। Nothing is as strong as gentleness, and nothing is as gentle as real strength. Bishop Joseph Pastor Nilangavil is a man of conviction and charism. No one can ever deter his determined determination. A man of integrity and insights, tireless in his mission and fearless in the face of difficulties. Mar Joseph Pastor was a pastor with a paternal heart to CMC Nirmal Jyoti province in the preliminary days of her missionary life in Sagar. The chronicles of initial days of Nirmal Jyoti portray him as a father who understood the anxiety of major superiors about the safety of the sisters in mission.
and a father who gave surprises to our sisters with a motherly heart, who was willing to share their hardships. We all have vivid memories of Bishop Pastor, and one thing we all have in common is the way he loved and lived for the church. Every time he shared any story of Saga Mission, his eyes would light up with the most amazing shine, a glow that would never go unnoticed. Nirmal Jyoti pays our humble homage to the gentle soul of Bishop Pastor. May his soul rest in peace. जय यीशु। बिशप जोसेफ पास्टर नीलन काविल 1987 में हमारे सागर धर्म प्रांत के गुना, विदिशा, रायसेन और सागर जिले के द्वितीय धर्माध्यक्ष बनकर आए थे। और उस समय हमारा सागर धर्म प्रांत बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। उसकी उन्नति के लिए, उसके विश्वास बढ़ाने के लिए और लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य करने के क्षेत्र में और धार्मिक विश्वास को बढ़ाने के क्षेत्र में बहुत काम किए, जिसकी वजह से हमारा धर्म प्रांत उन्नति के शिखर पर पहुंचने का प्रयास करने लगा। और उसके बाद वो 2006 में सेवानिवृत्त हो गए और उनके द्वारा किए गए कार्य से हमारा सागर धर्म प्रांत काफ़ी आगे बढ़ा। लेकिन उनका असमय निधन हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई शायद हमारा धर्म समाज कभी पूरा नहीं कर सकेगा। हम बिशप जोसेफ पास्टर नीलन काविल के इस मृत्यु के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर उन्हें स्वर्गराज प्रदान करें। जय यीशु। जय यीशु। मैं सुनील आइसक, संत जोसेफ चर्चगंज बासोदा से हमारे पूर्व धर्माध्यक्ष स्वर्गीय जोसेफ पास्टर नीलन काविल के पावन चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। स्वर्गीय बिशप इस धर्म प्रांत के लिए एक प्रेरणा थे। व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं भी उनसे बहुत प्रभावित था। उनके कई गुण हमें उनकी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे अनुशासन, ठानी हुई बात को हर हाल में पूरा करना। ये कुछ गुण थे जिनकी ओर सभी खिंचे चले आते हैं। बिशप स्वामी की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। हम सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने स्वर्गराज में स्थान दे और वे निरंतर इस डायसिस की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए प्रार्थना करते रहें। भावपूर्ण श्रद्धांजलि।